Onco Fest. Good afternoon to all of you, and it is indeed a pleasure to invite you today to this post-meeting press conference. So we, over the last 3 days, had extensive meeting which covered all the important topics of cancer, including topics like hemato-oncology, pediatric cancers on day 1. We also covered head and neck oncology, medical oncology, radiation oncology on day 2. And then we also had live surgeries in robotics and robotic oncosurgery on both day 2 and day 3. तो 3 दिन का प्रोग्राम था और we had more than 500 people who joined us from whole of Delhi NCR, and also doctors traveled from cities like Panipat, Karnal, Sonipat and Moradabad to attend a conference. So it was a big conference, and the conference covered all these important topics, and the purpose of this conference was to make people aware that cancer is one of the biggest challenges which we are facing today, and Max Super Specialty Hospital is very soon coming up with a big center which will have a dedicated oncology tower which will have almost 100 beds, and we have all these super specialties which are there, which are working together, and we have a big department of oncology at Max Shalimar Bagh. And with this introduction, I like to pass over to the proceedings in medical oncology. Dr. Sushant, he will be elaborating on what we did in the conference about medical oncology. So we had a academic feast. We had invited physicians from all over West Delhi and North Delhi who very keenly interacted with us, and to our surprise they asked very good questions to understand how oncology treatment is being changed in the current scenario, starting from not only chemotherapy, then we have targeted therapies, we have immunotherapies in which we increase or boost the immunity of the patient so that the cancers can be taken care by the body itself. It was well appreciated and it was well taken by all the physicians and the surgeons, and we then had a live workshop in which the robotic surgery, which is now the latest technology by which surgeries can be done with minimal damage to the normal tissue, it was also showcased. Dr. Rajendra, my colleague, will be telling you about the radiotherapy techniques, what all we had and what all discussions we had. Namaste. So in radiation oncology, we had exclusive debate, panel discussion, basically focusing on how to reduce ट्रीटमेंट रिलेटेड मॉर्बिडिटीज. जब भी हम कैंसर की बात करते हैं तो क्या होता है, पेशेंट बोलता है कि ये ट्रीटमेंट कराएंगे, क्या पेशेंट सहन कर लेगा, क्या वो टॉलरेट कर पाएगा, और इस वजह से बहुत सारे पेशेंट्स हमारे ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट आयुर्वेदा पे, नेचुरोपैथी पे चले जाते हैं बिकॉज दे हैव सो मेनी फियर्स. सो वी डिड ए डेडिकेटेड वर्कशॉप जहाँ हमने रोल ऑफ सर्जन कि वो कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर कर सकते हैं, रोल ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट वो कैसे ऐसी मेडिसिन यूज करें जिसमें साइड इफेक्ट्स कम हैं. देन इन रेडिएशन हम जब हेड एंड नेक कैंसर ट्रीट करते हैं तो हमारी स्लाइवा लार बनना कम हो जाता है, तो कैसे हम इस तरह से रेडिएशन दें कि हम स्लाइवरी ग्लैंड को बचा पाए और पेशेंट को ट्रीट कर पाए, तो इसका पूरा हमने डिस्कस किया. सेकंड बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो बढ़ रही है वो है जीआई मैलिग्नेंसीज. सो हमने सेकंड पैनल डिस्कशन जो रखा था कि जब भी हमारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो उनके बड़े वेग से सिम्टम होते हैं पेट से संबंधित, उन्हें नहीं पता होता कि अंदर उसमें मैलिग्नेंसी डेवलप हो रही है, तो स्लोली वो बढ़ जाती है. तो कैसे जल्दी डिटेक्ट करें, स्पेशली लीवर कैंसर, गोल ब्लैडर कैंसर, और किस तरीके से उसमें मिनिमम साइड इफेक्ट के साथ हम लोग आगे बढ़े. तो ये दो हमने पहला डिस्कशन सैटरडे किए. इसके साथ साथ हम लोगों ने जो नई टेक्निक हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं रेडिएशन की, जिनमें लेफ्ट साइडेड ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स में आप हार्ट को कैसे बचा सकते हैं, लीवर कैंसर को ट्रीट करते हुए, क्योंकि लीवर और लंग वो सांस के साथ मूव करते हैं, तो उसमें ब्रीदिंग को कैसे कंट्रोल करें, ये टेक्निक हमने अपनी कॉन्फ्रेंस में डिस्कस की जो हम यहाँ रूटीन में करते हैं. एक और बहुत यूनिक केस हम आजकल हम लोग कर रहे हैं जिसमें हम पूरी होल बॉडी को रेडिएशन देते हैं. कुछ ऐसे कैंसर होते हैं जो ब्लड के थ्रू फैलते हैं, पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं और आपको पूरी बॉडी को ही रेडिएशन देना होता है. तो अभी एक हम 7 साल के बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं, उसके लिए भी हम फर्दर इंफॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करेंगे मीडिया से.
ये बच्चा चेन्नई से ट्रैवल करके आया हमारे पास और अब उसको हम होल बॉडी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। पिछले 1 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा है। बच्चा ओपीडी बेसिस पे आता है, डेली वो ट्रीटमेंट करा के जा रहा है और अच्छे से टॉलरेट कर रहा है। ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, इनफैक्ट 3 दिन की, फ्राइडे सैटरडे संडे। फ्राइडे को हम लोगों ने ऑनलाइन वेबिनार किया था क्योंकि वर्किंग डे था, बहुत सारे फिजिशियंस आ नहीं सकते, तो वी हैड डिसाइडेड टू डू ए ऑनलाइन वेबिनार ऑन हेमेटोलॉजिकल कैंसर, दैट इज ब्लड कैंसर्स and bone marrow transplants, and we have state of the art facility over here in our center, in which not only for adults but as well for the pediatrics, बच्चों का भी हम ट्रांसप्लांट और रेयर डिजीजेस का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो उससे भी काफ़ी सारे पीडियाट्रिशियन हमसे जुड़े और उन्होंने हमसे डिस्कस किया कि क्या क्या केसेस उनके पास आते हैं और कैसे हम उनके साथ डील कर सकते हैं। सालों के अंदर वो हमारी कॉन्फ्रेंस का फोकस था। जैसे कि मेडिकल ऑन्कोलॉजी के बारे में अगर मैं बताऊं तो पिछले 5 सालों के अंदर इम्यूनोथेरेपी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल आया है और इम्यूनोथेरेपी अभी जो है कम से कम मान लीजिए 25 से 30 इंडिकेशन जो कैंसर, उसमें इम्यूनोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इम्यूनोथेरेपी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो बॉडी की खुद की इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। तो एक तरह से बिना कीमोथेरेपी दिए हुए ही हम कैंसर को बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाकर भी उसको क्योर भी कर सकते हैं और उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स अभी हैं जिनका स्टेज 4 कैंसर था और उनको हमने इम्यूनोथेरेपी देकर फंक्शनली क्योर कर दिया है। ऐसे पेशेंट जो कि बिना इम्यूनोथेरेपी के 3 से 6 महीने में नहीं निकालते, आज वो स्टेज 4 के अंदर 4 से 5 साल निकाल रहे हैं। ऐसी इम्यूनोथेरेपीज ब्रेस्ट कैंसर के अंदर, लंग कैंसर के अंदर, पैंक्रियाटिक कैंसर, कोलोन कैंसर, इन सभी कैंसर्स के अंदर काफ़ी कॉमनली यूज़ की जा रही है। ब्लड के कैंसर्स, लिम्फोमास, माइलोमास के अंदर भी इम्यूनोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल आया है। मुझे आप लोगों को ये बताते हुए बहुत खुशी है कि मैक्स सेंटर के अंदर, स्पेशली जैसे हम मैक्स शालीमार बाग की बात करें तो इम्यूनोथेरेपीज हमारे यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में अगर देखेंगे तो हाईएस्ट नंबर ऑफ इम्यूनोथेरेपी जो है वो मैक्स शालीमार बाग में इस समय हो रही है। तो ये काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस हो गई है इम्यूनोथेरेपी। जबकि अगर हम इसकी कंपेरिजन करें काफ़ी जो रीजनल कैंसर सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट सेंटर्स हैं, वहाँ पे बहुत बार अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम की वजह से लोगों को इम्यूनोथेरेपी नहीं मिल पाती है। तो एक ये चीज़ थी जो हमें अच्छी लगी। दूसरा, टारगेटेड थेरेपीज भी हम लोग काफ़ी यूज कर रहे हैं जो कि ओरल ड्रग फॉर्म में होती हैं और इनसे काफ़ी सारे लोग, जैसे ऐसे भी कैंसर्स हैं जैसे क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया, क्रॉनिक माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया, इन सब के अंदर सिर्फ गोली खाकर भी इंसान एकदम ठीक रह सकता है, जैसे शुगर और बीपी का इलाज होता है। तो इस तरह की थेरेपीज हमारे पास यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं अपने पेशेंट्स। एक और टर्म मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जिसपे हम काफ़ी फोकस कर रहे हैं हमारी पूरी टीम, उसका नाम है प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी। तो प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी का मतलब ये होता है कि किसी भी पेशेंट के जो कैंसर को हम दूसरे पेशेंट के कैंसर की तरह ट्रीट नहीं करते। आम भाषा में लोग सोचते हैं कैंसर एक बीमारी है। कैंसर के करीबन 250 तरह के डिफरेंट वैरायटी होते हैं और अब उन वैरायटीज के अंदर भी हर पेशेंट का इलाज उसके जीन, उसकी बॉडी की फिटनेस और उसके केमिकल कंपोजिशन के आधार पे किया जा रहा है। इसके लिए हम लोग जेनेटिक टेस्टिंग भी कर रहे हैं। हम एडवांस टेस्ट जैसे फ्लो साइटोमेट्री, साइटोजेनेटिक्स, इस तरह की टेक्निक को हम अपने यहाँ पे सेंटर पे यूज कर रहे हैं। तो प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी जो है एक बहुत नया तरीका है जिससे कैंसर का इलाज हो रहा है और हमें बहुत खुशी है कि मैक्स शालीमार बाग हॉस्पिटल में हमारी जो टीम है पूरी डॉक्टर्स की, जिसमें कि हम लोग ऑलमोस्ट 40 लोगों की टीम है यहाँ पे, जिसमें कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, ऑन्को-रेडियोलॉजी, ऑन्कोपैथोलॉजी और न्यूक्लियर मेडिसिन, इतने डिपार्टमेंट हैं। इन सारे डिपार्टमेंट्स का, जैसे अब ये जहाँ हम लोग आप लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं, ये ट्यूमर बोर्ड रूम है। यहीं पे हम लोग डिफिकल्ट केसेस को डिस्कस करते हैं और उसके आधार पर जो इंडिविजुअल पेशेंट के लिए जो ट्रीटमेंट जरूरी हो उस तरह की ट्रीटमेंट को डिफाइन किया जाता है। इस जो तरीके को हम बोलते हैं प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी। तो हमें ये बहुत खुशी आप लोगों से शेयर करने में है कि मैक्स शालीमार बाग वन ऑफ द फ्यू सेंटर्स है इंडिया के अंदर जहाँ पर हम प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से यूज कर रहे हैं। इसके द्वारा पेशेंट्स के जो रिजल्ट हैं वो मच बेटर आते हैं। एक आप जैसा आपने सुना होगा, वन शू फिट्स ऑल, ऐसी तकनीक की जगह पे अगर हम कस्टमाइज ट्रीटमेंट किसी का करें तो उसका रिजल्ट हमेशा बेहतर आएगा। और ये चीज़ हम अपने सेंटर पे लागू कर चुके हैं और इसको हम बाकी जगह पे भी स्प्रेड कर रहे हैं कि किसी भी कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो एक यूनिफॉर्म तरीके ना करके एक इंडिविजुअल पेशेंट के हिसाब से कस्टमाइज करके करना चाहिए। डॉक्टर वसीम हमारे मेडिकल ऑन्कोलॉजी में ही इज ऑल्सो सीनियर कंसल्टेंट। तो डॉक्टर साहब आप अपनी तरफ से कुछ। नमस्कार। ये जो हमारा अभी ऑन्कोफेस्ट हुआ था, अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके माध्यम से हमारा जो एक मैक्स कैंसर सेंटर शालीमार बाग है, ये मैसेज देना चाहते हैं कि
कैंसर लाइलाज नहीं है, कैंसर इज़ अ क्योरेबल डिजीज़, और हर किसी कैंसर का डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है, और हर कोई पेशेंट का जो डायग्नोसिस होता है, हर कोई पेशेंट एक समान नहीं होता है। डिफरेंट मरीज जो है वो डिफरेंट स्टेज में प्रेजेंट करते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4, और हर किसी स्टेज का अलग अलग उपचार होता है। हर किसी के लिए एक ही उपचार नहीं बना है। जैसे पहले कहते थे अगर हम 1-2 दशक पहले जाएं कि कैंसर हो गया तो ये बचेगा नहीं, ये मरेगा, ऐसा कोई, ये तो एक मिथ है। तो ये मिथ बस्टर के लिए कॉन्फ्रेंस की गई थी, ऐसा कुछ नहीं है। तो हर किसी जो ट्यूमर है, जैसे एक ट्यूमर है, किसी को कैंसर हो गया तो उसमें 3 फिजिशियंस का रोल होता है, एक रेडिएशन, सर्जिकल और मेडिकल। तो और हर कोई मरीज जो है उसका एक ट्यूमर बोर्ड होता है। हर किसी पेशेंट को हम डिसीजन लेने के लिए हर कोई पेशेंट ट्यूमर बोर्ड के थ्रू जाता है और उसका प्रॉपर इलाज होता है। और ये जो मैक्स शालीमार बाग की पहले से खासियत रही है वो ये है कि हर कोई पेशेंट ट्यूमर बोर्ड के थ्रू जाता है और उसका हर कोई, हम बैठ के डिस्कस करते हैं एक मरीज के बारे में, और उसका इसका प्रॉपर इलाज होता है। उससे क्या होता है, मरीज का ट्रीटमेंट बिल्कुल एज पर इंटरनेशनल क्राइटेरिया होता है। जैसे डॉक्टर सज्जन ने बात की है, डेफिनेटली इम्यूनोथेरेपी ने एक रेवोल्यूशनाइज ट्रीटमेंट है। जो हम पहले अगर एक दशक पहले जाएं तो एक था कि जो हम कैंसर मरीज जो एडवांस स्टेज थे, जो हम क्योर नहीं कर सकते, अब वो क्योर हो पाते हैं। बाई क्योर मेरा मतलब है कि 5 साल से ज़्यादा वो विद क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा समय निकाल सकते हैं। और कुछ लोग हमने देखा है कि 10-15 साल भी ऑन इम्यूनोथेरेपी अच्छा करते हैं, जो कि हमें लग नहीं रहा था कि वो क्योर होंगे। और दूसरा है प्रेसिशन ऑन्कोलॉजी। प्रेसिशन ऑन्कोलॉजी का ये मतलब है कि हर कोई ट्यूमर डिफरेंट है, हर कोई ट्यूमर का डिफरेंट ड्राइवर म्यूटेशन रहता है, तो उसको टारगेट करना, और जो कि मैक्स शालीमार बाग की एक बड़ी ही खासियत है। मुझे लगता है हम, जैसे डॉक्टर सज्जन ने कहा कि हम सबसे ज़्यादा इम्यूनोथेरेपी करते हैं प्रोबेबली नॉर्थ इंडिया में, जो कि इस कैंसर सेंटर का एक बड़ा ही वेरी इंपॉर्टेंट ये है, अचीवमेंट है इस कैंसर सेंटर। So hi all, I'm Bobby Verghese. I'm heading this unit. अगर मैं कैंसर की बात करूँ, I will be bilingual. It is okay with all of you? Yes, sir. In English, Absolutely. mixed, correct. So if you see the journey of onco, this is the most volatile segment in entire medical. अगर आप फील्ड में देखेंगे, मेडिकल फील्ड में सबसे वोलेटाइल सेगमेंट है, जो सबसे ज़्यादा इनोवेट हुआ, सबसे ज़्यादा इसमें रिसर्च हुआ। क्यों? क्योंकि ये डिजीज़ ऐसी थी जिस पे ज़रूरी था कि हर पार्ट, अगर आप बॉडी को देखेंगे, कैंसर इज नोन एज क्रैब, अगर आप जानते हो, क्रैब को कहीं पे भी रखेंगे वो किसी भी पैर से चल सकता है, दैट इज़ व्हाई द डिजीज वाज नेम्ड, राइट। सो आज अगर मैं बात करूँ 10 साल पुरानी या 5 साल पुरानी या 6 साल पुरानी, द थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट with the things which we used to say it was impossible. Now things have into a perspective where we can say that it is curable or the success rates are very high. Still there are many things in cancer field which is going on. As a hospital, we are committed towards this division. As a hospital, we are very much committed to the qualitative care and to give the world class research, the things which is happening around the world in Shalimar Bagh. In that perspective, we have came up with a new tower. आप लोग बहुत जल्दी सुनेंगे कि हमारे एक नया टावर है जो ऑन्को के पेशेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। हमारे कैंसर रिलेटेड चीज़ में हमारा एक प्रोग्राम चलता है निडर को लेके। दिस इज टू रियली सपोर्ट पीपल हु आर फाइटिंग दिस डिजीज। दिस यूनिट ऑफ एंटायर टावर विल हैव अ 360 डिग्री प्रोग्राम, जहाँ पे मैं BMT की बात करता हूँ, मेडिकल ऑन्कोलॉजी की बात करता हूँ, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की बात करता हूँ, रेडियोथेरेपी की बात करता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो उस फील्ड में जो बेहतर से बेहतर टेक्निक है या बेहतर से बेहतर क्लिनिकल टैलेंट है, वो हम लाना चाहते हैं दिस फील्ड। सो दिस इज व्हाट ऑल आई हैव टू से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस हियर फॉर दिस मीटिंग।